So in the last lecture we have discussed about polynomials. Now let us do worksheet 2.1 from NCERT. First question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. First part is 4x square minus 3x plus 7. Clearly it is a polynomial with degree 2. The highest power of x is 2, so degree 2. It is a polynomial in variable x. See, all the power of the variable are in whole number. Yes, it is a polynomial. Second is y square plus root 2. Clearly, again it is a polynomial in variable y. The power of y is 2, which is a whole number, so it is a polynomial. Third is 3 root t plus t root 2. Now, if you see carefully, this thing t raised power 1 by 2, root 2 becomes t raised power 1 by 2 and then root 2 times t. t की पावर यहाँ 1 by 2 है जो कि whole number नहीं है, so it is not a polynomial. So no, it is not a polynomial. Fourth part is y plus 2 by y. Again, if you simplify this, so it is y plus 2 by y can be written as 2y raised power minus 1. 1 by y को हम y की power minus 1 लिखते हैं. y की power minus 1 which is not a whole number, so it is not a polynomial. Reason आप लिखना चाहें तो लिख दें, because minus 1 is not a whole number, so power of variable is in negative. Fifth is x raised power 10, y raised power 30 and z raised power 50. Yes, it is a polynomial. This polynomial is in 3 variables x, y and z, and the highest power of z is 50, so the power degree of this polynomial is 50. This mention here, this polynomial is not in one variable. So yes, it is a polynomial but not in one variable. Not in one variable. तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि कौन से polynomial वन वेरिएबल में है, तो इसका आंसर आपके पास नो आएगा, बिकॉज ये वन वेरिएबल में नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं. ऐसे ये polynomial है बट वन वेरिएबल में नहीं है, सो हमारा आंसर होगा नो, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल. आफ्टर दिस लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन. Second question is, write the coefficient of x square. Coefficient of x square. तो सबसे पहले coefficient का क्या मतलब होता है वो सीख लेते हैं. तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम टर्म सिखाया था, तो कोई भी टर्म पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म कैसे बनती है, कांस्टेंट को वेरिएबल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल की पावर कितनी भी हो होल नंबर में, तो हमारे पास टर्म बन जाते हैं. तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो जो ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है, इसी कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट कहते हैं उस वेरिएबल का. जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, अब यहाँ वेरिएबल x है तो x का कोएफिशिएंट 2. अगेन एग्जांपल x² + 3x - 2, अब यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है. x³ - 7x² + 4x + 2, यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट -7 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, एंड कांस्टेंट टर्म का मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 2 है. x की पावर 0 मतलब बेसिकली 1. सो कोएफिशिएंट मींस जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है वो उसी वेरिएबल टर्म का कोएफिशिएंट होगा. जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x, तो आपको इसमें बताना है x का कोएफिशिएंट क्या होगा. तो x का कोएफिशिएंट x के साथ कौन मल्टीप्लाइड में है 1, सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1. सेकंड पार्ट इज 2 - x² + x³. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -1. थर्ड पार्ट इज π/2 x² + x, so coefficient of x square is π/2. Fourth part is √2x - 1, so coefficient of x square is 0. Why 0? See, there is no term of x square, so you can write here, you can add 0, there is no problem in this. If you add 0 to it, it will be same. You can write it again, √2x - 1 plus 0 को 0 into x square लिख सकते हैं. 0 into x square 0 ही होगा, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 0. जो टर्म एब्सेंट होती है उसका कोएफिशिएंट 0 होता है. थर्ड क्वेश्चन, give an example each of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. So binomial जिसमें दो टर्म्स होती हैं और डिग्री मेंशन की हुई है 35. So if degree is 35 and there are two terms, then it can be x raised power 35 plus 1. So this can be the polynomial, and this polynomial is basically a binomial with a 35 degree.
इसकी डिग्री 35 है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 35 ली है एंड बाइनोमियल बिकॉज़ में दो टर्म्स है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते थे, बस आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x 35 लेनी है, प्लस x ले लो, माइनस x ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक एनी टू टर्म्स, हाईएस्ट पावर ऑफ x मस्ट बी 35। ये वेरिएबल x में बाइनोमियल है 35 डिग्री का। Another example of monomial degree 100, again take p of x is x raised power 100। so एक ही टर्म है इसके अंदर, so this is the monomial, एक ही टर्म है monomial और डिग्री 100 पे दी उसने, तो हमने हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी लिया 100। you can also take 7x 100 minus 2x 100, बस x की पावर 100 ही करनी है, तो इसमें बेसिकली एक ही टर्म आ सकती है वेरिएबल का। नेक्स्ट इज write the degree of each of the following polynomials। इन polynomials की डिग्री बतानी है हमको। तो polynomial है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, 5x³ + 4x² + 7x 4 - y² सेकंड पार्ट 5t - √7 एंड 3। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ y, वेरिएबल y में हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें t की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। और यहाँ 3 लिखा है तो क्या हम 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं? यस, 3 × 1। अब हमें पता है किसी की पावर 0 1 होता है तो हम इस 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं। देखो x को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1, x से x करके 1 आएगा आंसर। अब आपने ये रूल सीखा हुआ है a⁻m/a⁻n, इट इज एक्सपोनेंट रूल होता है। ये a की पावर ये n ऊपर चला जाता है, a की पावर m - 1। देखो यहाँ भी आप अगर यही रूल अप्लाई करोगे तो 1 ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 1 - 1 0, x की पावर 0 इज 1। तो ये प्रूव करके दिखा दिया, x पर 0 1 होता है तो 1 को 1 की जगह हम x पर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 0। इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर आता है p of x is equal to c, where c is any real value but except 0। 0 नहीं होगा except 0। इस पॉलिनोमियल को जहां पर c कोई भी रियल वैल्यू है, इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री 0 होती है। 0 भी एक पॉलिनोमियल, यहां मैंने लिखा ना एक्सेप्ट 0, तो p of x equal to 0 वाला केस हम अलग से स्टडी करते हैं। px equal to 0 इस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नेम होता है, इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। है तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बट इसका एक स्पेशल नाम है जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। Why the degree is not defined? देखो 0 को आप 0 into x भी लिख सकते हो, 0 into x square भी लिख सकते हो, 0 into x की पावर कुछ भी लिख सकते हो, 5 7 n कुछ भी लिख सकते हो, 0 ही रहेगा ये। तो यहाँ से कोई इसकी डिग्री 1 करेगा, कोई 2, कोई 5, कोई 7, यानी कि इट हैज इनफाइनाइट आंसर्स। तो मैथ में मल्टीपल आंसर्स एक्सेप्ट नहीं होते हमेशा, तो इसकी डिग्री इसीलिए मैथमेटिशियंस ने नॉट डिफाइंड रखी। अब 0 की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो दैट वाज द लॉजिक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Fifth question is classify the following polynomial as linear quadratic cubic। First part is x square plus x, so highest power of x is 2, that means we have degree 2 और 2 डिग्री वाले को हम quadratic कहते हैं। यहाँ पर ये quadratic है और साथ के साथ binomial भी है, इसमें दो टर्म्स है तो binomial। वैसे इसने पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है तो आपका आंसर quadratic आएगा। सेकंड पार्ट इज x minus x cube, डिग्री कितनी है यहाँ पर? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड इट इज 1 plus x, डिग्री इज 1 एंड 1 डिग्री वाले को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, t की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल t है, डिग्री इज अगेन 1, इट इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। r square, its degree is 2, r is variable and it is called quadratic polynomial। Sixth, 7x cube, so x is variable, degree is 3, we call it a cubic polynomial। That was exercise 2.1। I hope आपको समझ में आई होगी। For exercise 2.2, let us do the concept, and the second concept of this polynomial chapter is value of a polynomial। So value of a polynomial, this is very important concept, value of a polynomial। Let us discuss about this, what do you mean by a value of the polynomial? Suppose we have a polynomial p of x,
suppose it is 5x minus 4x square plus 3. Let's say we have this polynomial. Now, if question says you, we have the value of x as 1, then find what is the value of p of x when x equals to 1. So पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की पर्टिकुलर वैल्यू 1 हो तो उस केस में पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. किसी गिवन पॉइंट पर, यानी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज करते हैं हम, जैसे यहाँ हमने x यूज किया, इस वेरिएबल की कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है. अगर आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो 10th क्लास में आप सीखेंगे पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हो. x एक्सिस और y एक्सिस पर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू लोगे p ऑफ x. यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैन टेक एनी वैल्यू. ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं. जो भी आप x रियल नंबर लेंगे और इस पॉलिनोमियल में इस x की जगह पर रखेंगे तो यहां पर ये सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा. उस आंसर को बोलेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू उसी पॉइंट पर जो पॉइंट रखा था. अब इसका मतलब ये हो गया, आपके पास एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा. अगर आपने सपोज x की वैल्यू a रखी थी यहां, तो a रखने के बाद p ऑफ a जो आपका आंसर आया वो वैल्यू आप यहां पर एक पॉइंट बनेगा a, p ऑफ a. इस तरह से आप अलग-अलग वैल्यू रखेंगे तो पॉइंट बनते रहेंगे. उन सब पॉइंट्स को अगर आप करेक्ट कर लें, उन सब पॉइंट को करेक्ट कर लें और उन सबको हम ड्रॉ कर दें तो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ p ऑफ x. वो शेप कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है डिग्रीज के ऊपर. तो आपका हायर क्लास में आएगा. बेसिकली द आइडिया इज वी टेक p of x value on y axis and x value on x axis and we put different values of x here and get the values of p of x corresponding to that values and then plot the graph. अभी आपको ग्राफ प्लॉट वैसे नहीं करना है, अभी आपको यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है. तो वैल्यू कैसे निकालोगे, x को 1 रखो पॉलिनोमियल में, तो x को 1 रखेंगे तो हम उसको लिखेंगे p. x के प्लेस पर मैं 1 रख रहा हूँ तो x की जगह 1 इक्वल टू, जहां जहां पर राइट साइड में x है वहां पर आपका 1 पुट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो x की जगह 1 तो 5 into 1 ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस 4. x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 3. 5 into 1 is 5, 4 into 1 1 square is 1, 4 into 1 is 4 plus 3. तो आंसर कितना आ गया 4. 1 plus 3 is 4. So p of 1 is 3. अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब है p of x has value, p of x has value equal to 4 when या at या if x वैल्यू is 1. तो x की वैल्यू 1 होने पर p of x की वैल्यू 4 है. ये p of x की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर, तो आप जो भी x की वैल्यू दोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग p of x की वैल्यू आ जाएगी. So this is the concept of value of polynomial. So what is the value of polynomial? Value of polynomial is some real number which is obtained by substituting the value of given x, given point from which you want to calculate the value of p of x. तो इसी में ही अगर आप suppose at x is equal to 0 वैल्यू निकालना चाहते हैं तो p of 0 कैसे निकलेगा, p of 0 निकालने के लिए x को 0 रख दो, तो 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. तो 0 minus 0 plus 3, तो आंसर will be 3. अगर आपको p of minus 1 निकालना है, p of minus 1, तो p of minus 1 कैसे निकलेगा, x को minus 1 रखेंगे, so 5 into minus 1 ब्रैकेट 4 into यहाँ minus 1 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो minus 1 का स्क्वायर and plus 3. So 5 into minus 1 is minus 5, minus 1 का square 1 into 4 is 4, minus 4 plus 3, तो minus 9 plus 3 is minus 6. So minus 6 is the value of polynomial. ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x जो आप उसमें रख रहे हैं. This is the concept of value of the polynomial. Let us do exercise 2.2. तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3. इस पॉलिनोमियल को आप p of x से डिनोट कर सकते हैं, तो let us denote the polynomial by p of x sign. At x equal to 0 इजीली आप कर सकते हो, x की जगह 0 रखेंगे. इसी तरह से आप x की वैल्यू -1 पर आंसर निकाल लेना and x की वैल्यू 2 पर, तो आई थिंक आप कर लोगे इजीली. सेकंड क्वेश्चन इज
find p of 0, p of 1, p of 2 in each of the following polynomials. First part is p of y. It is y square minus y plus 1. अब पॉलिनोमियल वेरिएबल y में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वेरिएबल यूज करें, हमें p of 0 निकालना है. 0 निकालने का मतलब y को सब्स्टिट्यूट करना है 0 इस पॉलिनोमियल में. सो y की जगह 0 रखेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, सो आंसर विल बी 1. इसी तरह से आपको p of 1 निकालना है, तो p of 1 निकालने के लिए 1 रख लेंगे. सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. आंसर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर इट इज 4 minus 2 plus 1, सो आंसर विल बी 3. सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं. अब एक छोटा सा कंसेप्ट और करते हैं, एंड दैट इज रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट को हम क्या कहते हैं? रूट इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज, देखिए बात, जीरो भी कहते हैं इसको, सॉल्यूशन भी कहते हैं. रूट, जीरो या सॉल्यूशन, इट मींस द सेम थिंग. नाउ डेफिनेशन, व्हाट इज बेसिकली द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल? लेट p of x be a given polynomial. सपोज p of x हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कितने भी डिग्री का हो सकता है. नाउ जो यहां x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x कैन टेक एनी वैल्यू. जो भी आप x की वैल्यू रखोगे p of x में, तो कोरस्पॉन्डिंग आपको p of x की वैल्यू मिल जाएगी. जैसा पॉलिनोमियल होगा वैसी वैल्यू मिल जाएगी. सपोज आपका पॉलिनोमियल p of x है x, और आप इसमें x की वैल्यू 0 रखते हो तो p of 0 की वैल्यू 0 मिलेगी. सपोज आपका पॉलिनोमियल p of x है x plus 1, और आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो -1 plus 1 0 आ जाएगा. सपोज आपका पॉलिनोमियल p of x है x square minus 1, और आप पॉलिनोमियल p of x की वैल्यू 1 पर वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो 1 square minus 1 0. सपोज p of x है आपका x plus 2, और पॉलिनोमियल की वैल्यू आप सपोज 0 पर निकाल रहे हो तो आंसर आएगा 0 plus 2 is 2. देखो आपने नोटिस किया, ये 4 एग्जांपल लिए मैंने, और सभी पॉलिनोमियल्स में कुछ ना कुछ किसी पॉइंट पर मैंने वैल्यू निकाली है. 3 पॉलिनोमियल के आंसर यहां पर 0 आए हैं और इसका आंसर 2 आया है. तो यहां पर क्या है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है ना, ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, ये एक स्पेशल बात है. हर एक पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी. अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो आपके आंसर डिफरेंट आएंगे. बट एट द मोमेंट व्हेन यू हैव आंसर 0, मतलब x की कोई वैल्यू रखी आपने, पता नहीं कोई सी भी वैल्यू रखी आपने, लेकिन आपका आंसर जो आया वो 0 आया. देखो यहां भी 0 आया, यहां भी 0 आया, यहां भी 0 आया. तो ये जो नंबर्स है ना, जो वैल्यू मैं रख रहा हूं, ये नंबर स्पेशल नंबर्स हैं, दे आर नॉट यूजुअल. ये जो वैल्यूज हैं जिन पर पॉलिनोमियल इवैल्यूएट होकर आंसर 0 दे रहा है, इन वैल्यूज को पॉलिनोमियल के रूट कहते हैं. चलो इनको हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं. इसका यूज होता है आगे ग्राफ में, फर्दर स्टडी में. तो अभी मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करता हूं. लेट px बी द गिवन पॉलिनोमियल, देन x इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहां पर एक वैल्यू ली a, क्योंकि p of x गिवन नहीं है ना, तो हमें p of x गिवन है तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल की वैल्यू बता सकते हैं. अब हमें p of x जनरल पॉलिनोमियल लिया, अगर जनरली कोई पॉलिनोमियल लें तो उस पॉलिनोमियल का रूट भी हमें जनरल सेंस में ही बताना पड़ेगा. तो देन x इक्वल टू a, a यहां पर कोई फिक्स्ड वैल्यू है, a यहां पर कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, कोई फिक्स्ड रियल वैल्यू है, यानी एक नंबर है. सो x की वैल्यू a, this value is called the root, or you can say solution or 0 of what, p of x, जो पॉलिनोमियल हमने लिया है. ध्यान रखना हर पॉलिनोमियल का रूट सेम नहीं होता, डिफरेंट भी हो सकते हैं. इनफैक्ट हर एक पॉलिनोमियल के रूट अलग-अलग होते हैं. p of x be a given polynomial, then x equal to a is called the root of p of x if, कंडीशन है, if पॉलिनोमियल p x के प्लेस पर a रख दें हम, यानी कि इट मींस हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट वैल्यू एट x is equal to a, this value comes out to be 0. ये कंडीशन है और यही आपकी कंप्लीट डेफिनेशन है.
So x is equal to a is called the root of p of x if p of a equals to 0. So x is equal to a is called the root or 0 or the solution of p of x if p of a equal to 0. For example, मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल p of x है x plus 3. x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे यहां पर आंसर 0 आ जाए? तो देखो इस बात को हम सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम निकालने के लिए एक काम करते हैं. हमें क्या चाहिए? पॉलिनोमियल में x का नंबर चाहिए, यहाँ x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे आंसर में 0 मिल जाए. सपोज हमारे पास वो नंबर a है, सपोज x की वैल्यू a है, तो a रखते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए. तो हमने x की जगह a रखा तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 0. तो जो a की वैल्यू होगी उसको हम पॉलिनोमियल का रूट कहेंगे बाय डेफिनेशन. अब p ऑफ a का मतलब क्या है? जहां पर x है वहां a रख दो तो a + 3 = 0 हो गया. तो यहां से आप सॉल्व करोगे a की वैल्यू कितनी आ गई? -3. So therefore I can say x equal to मैंने a लिया था और a की वैल्यू -3, तो I can say x equal to -3 is the root of polynomial p of x. Here it is x plus 3. You can also verify it. Verify कैसे कर सकते हो? By definition polynomial का रूट क्या होता है? एक ऐसा नंबर, polynomial का रूट क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो polynomial को 0 कर देता है, vanish कर देता है, destroy कर देता है, खत्म कर देता है, उसको वैल्यू 0 कर देता है. तो वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो p ऑफ x क्या था हमारा? x plus 3. हमने x की वैल्यू क्या निकाली है? रूट -3. -3 रखते हैं x की जगह. -3 plus 3 कितना आंसर आया? 0. तो क्योंकि हमें आंसर 0 मिला तो p ऑफ -3 0 आने का क्या मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है ये कोई स्पेशल वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो चुका है. तो ये जो -3 स्पेशल वैल्यू है, इसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी हर वो वैल्यू पॉलिनोमियल का रूट है जिस पर आंसर 0 आता है. अब क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है जो आप 10th क्लास एंड ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है. तो वो क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के n डिग्री है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स. तो अभी आप 9th क्लास में हो तो ठीक है, रियल रूट्स ही पढ़ लो. आगे आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पढ़ेंगे एंड ये सब और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको. जैसे px x² - 4 लिया, अभी हमने डिग्री 2 लिया, तो इसके दो रूट्स दिखा सकता हूं. p ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं. 2 का स्क्वायर 4 - 4 0. क्या इसको रूट कहेंगे? यस, क्योंकि आंसर 0 आया तो जो वैल्यू रखने पर आंसर 0 आता है तो उस वैल्यू को रूट कहते हैं. तो x = 2 यहां रूट बन गया. ऐसे ही p ऑफ -2 -2 का स्क्वायर 4 -4, तो आंसर कितना आया? 0. तो -2 भी रूट है तो यहां पर इसके दो रूट हो गए, 2 और -2. क्या और कोई इसका रूट है? देख लो. जैसे मान लो अगर मैंने 1 p ऑफ 1 निकाला तो p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? 1 का स्क्वायर -4 दैट इज -3. क्या आंसर 0 आया? नहीं आया. तो x = 1 इज नॉट द रूट, is not the root of which polynomial? x² - 4. क्या यहां पर x की वैल्यू 0 इसका रूट है? देखते हैं. p ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो 0 + 3 is 3, 3 is not equal to 0, तो 0 is not the root. तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई क्वांटिटी, कोई वैल्यू पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं है. तो जो भी x की वैल्यू दी होगी उसको पॉलिनोमियल में रखेंगे. आंसर 0 आएगा तो रूट है, नहीं आएगा तो रूट नहीं है. आई होप आपको रूट का टॉपिक क्लियर हो गया. तो रूट कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर 2 और -2 कैसे पता करें? मैंने x² - 4 को 0 कर दिया एंड सॉल्व कर लिया. इसी तरह से रूट निकालने का मतलब क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल होता है अगर हम उसको इक्वेट कर दें 0 के लिए एंड सॉल्व करें x की वैल्यूज के लिए, तो जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हम बोलेंगे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. तो अब आपकी 2.2 कंप्लीट हो जाएगी. दो क्वेश्चन रहते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं अभी. तो 2.2 में आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. वेरीफाई करके बताओ कि ये जीरोस हैं या नहीं है. जैसे फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x = 3x + 1 और इंडिकेटेड पॉइंट यानी साथ में मेंशन पॉइंट लिखा है x = -1/3. तो हम x को -1/3 रखेंगे इसमें. x को -1/3, 3 into x की वैल्यू -1/3 + 1. ये मल्टीप्लाइड का साइन है, आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो ब्रैकेट यूज कर लो. 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 दिस बोर्ड पास पहले मल्टीप्लाई होगा ये एंड देन एडिशन सब्ट्रैक्शन. सो इट इज 0. तो यस p ऑफ -1/3 कितना आ गया? 0 आ गया. तो क्या हम -1/3 को रूट कहेंगे? द आंसर इज यस, बिकॉज़ रूट इज सच अ वैल्यू ऑफ x at which the polynomial gives a 0 value.
सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स खुद कर सकते हैं। मैं इसमें बीच में से एक दो पार्ट और करवा देता हूँ जो मुझे लगता है। जैसे फोर्थ पार्ट है, p ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और इंडिकेटेड पॉइंट्स है x इक्वल टू माइनस 1 और 2, x प्लस 1 इंडिकेटेड पॉइंट माइनस 1 2। तो पहले माइनस 1 रखेंगे x की जगह, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, दिस बिकम्स 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। 2 भी रख लेते हैं, p ऑफ 2, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 इंटू समथिंग इज 0। तो both are zeros, yes both are zeros because both satisfies the definition of root. So I hope आप कर लेंगे। एक ये रूट वाला क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ज्यादा, वो भी कर लेते हैं। p of x equals to 3x square minus 1, x की वैल्यू minus 1 by root 3 and it is 2 by root 3। So p of x, x की जगह minus 1 by root 3 रखेंगे, it is 3 into minus 1 by root 3 whole square minus 1, it is 3 into x की जगह माइनस 1 बाई रूट 3 रखेंगे, उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर इट इज 1 और रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। अब रूट 3 को लिख दो 3 की पावर 1 बाई 2, बाहर 2 है, 3 की पावर 1 बाई 2 into 2 तो इट इज 3। अनदर वे रूट 3 का स्क्वायर को आप रूट 3 into रूट 3 लिख लो, इट इज मल्टीप्लाई होता है 9 और रूट 9 कितना होता है 3। और बेसिकली ना ये भी पता होना चाहिए कि रूट 3 का स्क्वायर जो है ना वो रूट 3 into रूट 3 होता है। तो रूट 3 का मतलब 3 की पावर 1 by 2, बेस सेम है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो 1 by 2 plus 1 by 2 इट इज 3। पता होता है वैसे बच्चों को, बट फिर भी ये 3 कैसे आया रूट 3 into रूट 3, जबकि रूट 2 into रूट 3 कितना आएगा रूट 6 आएगा। तो इट इज 3 minus 1 कैंसिल, सो 1 minus 1 आंसर इज 0। माइनस हट जाएगा, स्क्वायर होना तो पॉजिटिव आएगा, सो आंसर इज 0। यस दिस बिकम्स द रूट। 2 by रूट 3 चेक करते हैं, तो x की जगह हम 2 डिवाइड बाय रूट 3 रखेंगे, तो इट बिकम्स 3 into, देखो 2 by रूट 3 रखोगे स्क्वायर करोगे, ओपन कर रहा हूं मैं स्क्वायर डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 3 minus 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 minus 1 3, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं। तो देयरफॉर 2 by रूट 3 इज नॉट द रूट। एक रूट है और दूसरा नहीं है, दिस इज नॉट द रूट एंड minus 1 by 3 दिस इज द रूट। रूट और 0 एक ही बात है, 0 कह लो या रूट कह लो। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं रूट क्या होता है? पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरोस निकालने हैं। p ऑफ x कितना दिया है? x + 5, तो आपको पता है जीरो निकालने हैं, तो 4 जीरोस ऑफ p ऑफ x, जैसे यहां जीरो भी लिख सकते हैं, एक ही रूट होगा तो जीरो भी चल जाएगा। फॉर जीरो ऑफ p ऑफ x का जीरो निकालने के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन? जीरो ऐसी वैल्यू है x की जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके x निकाल लेते हैं। तो फॉर जीरो ऑफ x p of x becomes 0, so we'll write put p of x equal to 0, therefore p of x क्या है? x + 5, इसको 0 रखेंगे, that implies x की वैल्यू कितनी आ गई? -5, so -5 is the root or the 0। You can also verify it, p of x की जगह -5 रखना, it becomes -5 + 5, so it becomes 0, yes it is the root। इस तरह से आप सभी पार्ट कर सकते हैं, सभी लीनियर वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आना चाहिए, बट फिर भी मैं एक दो पार्ट बीच में करा देता हूं। px = 3x है, तो इसका 0 निकालने के लिए 3x को 0 करना आपने इसी तरीके से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x = 0, तो x = 0 डिवाइड बाय 3 इट बिकम्स 0। p of x = ax, तो ax को 0 के इक्वल कर देना, x की वैल्यू 0 by a आएगी, 0 by a is 0 provided a is not equal to 0, तो a not equal to 0 दे रखा है। 0 by 0 का आंसर डिफाइन नहीं होता, दैट इज इनडेटरमिनेट फॉर्म, 11th क्लास में पढ़ेंगे। एक लेते हैं और p of x = cx + d, तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 नहीं दी हुई, c की वैल्यू 0 नहीं दी हुई, ठीक है, x का ऑप्शन 0 नहीं हो सकता, तो p of x को 0 के इक्वल करते हैं, दैट मींस cx + d को 0 के इक्वल करते हैं, दैट मींस cx = -d आया, दैट मींस x = माइनस का d डिवाइड बाय c, तो दिस इज द रूट और 0। तो अब तक हमने 2.2 एक्सरसाइज तक कर लिया है पॉलिनोमियल में विद कांसेप्ट्स। एक बार रूट का कांसेप्ट मैं आपको और क्लियर कराने के लिए दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी zeros can a constant polynomial have?
अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो हो सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोस कैन अ जीरो पॉलिनोमियल हैव? तो इस क्वेश्चन का आंसर कई बार 10th क्लास के बच्चे भी नहीं दे पाते, इनफैक्ट उससे हायर क्लास वाले बच्चे भी नहीं दे पाते, बेसिक कांसेप्ट भी दिक्कत आती है कई बच्चों को। तो क्योंकि वो बेसिकली उन्होंने जीरो पॉलिनोमियल को इतना डिटेल में पढ़ा नहीं होता। जीरो पॉलिनोमियल मैंने बताया आपको, जीरो पॉलिनोमियल p of x equal to 0 इसी चीज को बोलते हैं, इसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑन द अदर हैंड क्या होता है? px c, c कोई भी वैल्यू होगी, बस जीरो को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू होगी, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो दोनों ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पर इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हाउ मेनी जीरोस कैन अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव? तो आप आंसर देख सकते हैं, खुद से एक बार गेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको आंसर दे रहा हूं, हाउ मेनी जीरोस कैन अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव? तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब यहां c की वैल्यू तो जीरो है नहीं, हमें पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो c है इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो जो ये x है यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू रखो, क्या आपको आंसर जीरो मिलने वाला है कभी भी? द आंसर इज नो। देखो जैसे p of x आपको 3 दिया हुआ है और मैंने कहा p of 0 की वैल्यू निकालो, तो कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आंसर 0 बता देते हैं, समथिंग कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर 3 ही आएगा। देखो क्यों आएगा? अगर आपके पास p of x इक्वल टू सपोज x + 1 है और आपको वैल्यू निकालनी है p of 3, तो जो x की वैल्यू 3 है उसको आप राइट में भी रखेंगे, 3 + 1 कितना आंसर आ गया? 4। यहां पर p of x 3 है, इसमें x अपीयर नहीं हो रहा, राइट साइड में आपका x अपीयर नहीं हो रहा, तो जब मैंने लेफ्ट में x की वैल्यू 0 डाली तो राइट में तो x की वैल्यू डालने के लिए है नहीं, इसका मतलब तभी तो इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिकॉज़ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इट डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। सो p of x is 3, मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो x की सभी वैल्यू के लिए 3 आंसर देगा। तो अगर आप x की वैल्यू 0 भी डाल लो तो इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, इसका आंसर 3 रहेगा। स्टिल कई बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो उसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं, देखो समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं हम, या आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, इनिशियल लेवल पर p of x equal to 3 लिखा है तो आप इसको 3 + 0 * x लिख सकते हैं, इट इज 3। अब आपने x को 0 डाला है, तो अब आपके मन की बात आ जाएगी, हमने x को 0 डाला है तो ठीक है डालते हैं 0 * x की जगह 0। देखो यहां पर x को 0 डाला तो यहां भी डाल दिया मैंने 0, 0 * 0 is 0 + 3 आंसर इज 3। ऐसा भी देख सकते थे आप, जैसे मान लो p of x equal to 3 लिखा है तो आप 3 को 3x की पावर 0 भी लिख सकते हो। अब आप x को यहां पर सपोज 1 डाल दो तो आंसर क्या आएगा? चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो किसी भी वैल्यू के लिए आंसर चेंज नहीं होगा, 3 रहेगा। देखो अब आप 3x की जगह 1 की पावर 0, अभी मैंने समझाया था कि किसी नंबर की पावर 0 का आंसर 1 होता है, तो 3 * 1 raised power 0 is 1, 3 * 1 is 3। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम रहती है किसी भी पॉइंट पर। तो अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 1 पर निकालूं तो भी 3 रहेगी, -1 पर निकालूं तो भी 3 रहेगी, 5 पर निकालूं, किसी भी रियल नंबर पर निकालूं वैल्यू उसकी कांस्टेंट 3 रहेगी। तो आई थिंक आपको आंसर पता लग गया होगा, बट फिर भी देखो, हाउ मेनी जीरोस कैन ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव? द आंसर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, इट हैज नो जीरोस, इसका एक भी जीरो नहीं होगा, because you cannot find a value of x for which p of x is 0. In fact p of x is non-zero, c is non-zero, तो आपको x की कोई भी वैल्यू ऐसी यहाँ नहीं मिल सकती जिसके लिए p of x का आंसर 0 है। This is a constant polynomial. Constant polynomial के zeros नहीं होते। जैसे ये x एक्सिस है, constant polynomial का ग्राफ ऐसा होता है और ये ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करता, इसका कोई भी जीरो नहीं होता। 10th क्लास वाले बच्चे समझ सकते हैं, जब कोई ग्राफ x को कट करता है तो वहां पर उसका जीरो क्रिएट हो जाता है, यहाँ x की वैल्यू आ जाती है, जो भी वैल्यू होती है वो जीरो होती है, x का रूट होता है वो। अब जैसे ये है तो ये 3 बार कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोस होंगे, एक बार कर रहा है 1 जीरो का, एक बार ये कट नहीं कर रहा तो इसके जीरो नहीं होंगे, नॉट जीरो होंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा इसका। दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाउ मेनी जीरोस कैन जीरो पॉलिनोमियल हैव? इसका आंसर अब p of x equal to 0, अब यहाँ x को कुछ भी डाल लो, ये जीरो तो चेंज होगा नहीं, तो p of 1 की वैल्यू भी 0, 2 की वैल्यू भी 0, p of any number it will give you 0, so it has बिल्कुल ऑपोजिट आंसर है, इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी जीरोस है और it has infinite zeros। इसका अगर ग्राफ देखें तो x एक्सिस
x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर आप p ऑफ x ले रहे थे, कहने का मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0। ये जो x एक्सिस लाइन है ये p ऑफ x इक्वल टू 0 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू डालो, उस पर जैसे आपको पता है अगर x 1 लो तो y तो हमेशा 0 होता है, जो y 0 है ना यही p ऑफ x की वैल्यू है, और x की वैल्यू कुछ भी डाल लो आप, आंसर p ऑफ x का क्या रहेगा 0। x एक्सिस पर y 0 होता है। सो कंप्लीट दिस x एक्सिस इज representing infinite zeros. Thank you.